یہ عہد کیا، ہم نے حلفاً گواہوں کی موجودگی میں ہم نے حلف اٹھایا، ہم نے کہا اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے، میں نے کہا اگر حاجی صاحب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے سب سے پہلے میں ہاتھ پہناؤں گی۔ حاجی صاحب نے بھی حلفاً کہا کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو میں آپ کو ہار پہناؤں گا۔ اب جب حلف کی ویلیڈیشن ہوئی ہے تو حاجی صاحب کے وہ گواہان اپنے ساتھ موجود تھے جو حاجی صاحب بالکل ہے، بالکل ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کے مینیفیسٹو میں نہ یہ جو مواصلات کا نظام اس وقت درہم برہم ہے، اس پہ کوئی بھی آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فائنانس ایکٹ 2022 اس کی جو پروویژنز اب سامنے آ رہے ہیں، کہیں دکان بند ہو رہی ہے، کہیں پر چکی بند ہو رہی ہے، اس پر اس کی جی فدا صاحب آپ کو سوال مجھے سمجھ ہے، اس کے اوپر ہم نے ابھی تفصیلاً ہم نے ایک بڑی سی پریس کانفرنس وہ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، سیکرٹری جنرل جناب نیر حسین بخاری صاحب کا، صوبائی صدر جناب امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب کا، اور صوبائی تمام کیبنٹ بورڈ ممبران کا، اس کے بعد ڈویژنل کیبنٹ کا، اس کے بعد میرے صوبائی ڈسٹرکٹ کے قیادت کیبنٹ جناب صدر چیئرمین ابراہیم صاحب اور اس کی پوری کیبنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹکٹ میرے نام کر دیا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، یہ ٹکٹ میرا نہیں ہے، عوام کا ٹکٹ ہے۔ میں صرف یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ میں انشاءاللہ اللہ کے نام سے آج سے باقاعدہ اپنے الیکشن کیمپین کا میں آغاز کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ کچھ شکوک و شبہات پیدا کی گئی تھی کہ آمنہ انصاری الیکشن کنٹسٹ نہیں کر رہی ہے، اور میرے اس کے خلاف کچھ پروپیگیٹس ہو رہے تھے۔ تو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے ٹکٹ سے حلقہ جی ویلے 23-2 سے باقاعدہ الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہوں۔ اگر کسی کے یہ شکوک و شبہات ہو، میں اس کو دور کرنا چاہتی ہوں، یہ میڈیا کے تھرو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں باقاعدہ الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا حساس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، میں تمام کینڈیڈیٹس جو گانچھے کے تینوں حلقوں کا، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں الیکشن کے دوران امن، اتحاد، یکجہتی کے ساتھ تمام سپورٹرز، تمام ورکرز کو میں یہ گزارش کروں گی کہ پرامن طریقے سے اس الیکشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ورکر سپورٹرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو پرامن طریقے سے الیکشن کو انشاءاللہ 7 جون کو ہم الیکشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو میرا یہ آخری پیغام یہ ہے، امن، اتفاق، یکجہتی کے ساتھ اس الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ دے دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں عمران سعید صاحبہ، اور ہیڈ کوارٹر ہیں یہاں پر جو سٹی کے آپ کے جو وزران ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو وزران تھے، آپ کے جو کارکنان تھے، وہ آج اس پریس کانفرنس میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں، کیا آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں آپ صحیح کہتے ہیں، وہ اس لیے چونکہ میں خود اس پریس کانفرنس میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ کل یہ پریس کانفرنس کا ہمارے امیدوار نے کل رکھا تھا، کل چونکہ میں اسکردو میں مصروف تھا، میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو آج بھی میرا ٹائم بہت مختصر تھا، ان کا اپنا بھی تھا، تو اس وجہ سے ہم پورے اپنے جو کابینہ تھا یا ہمارے جو باقی لوگ تھے ان کو ہم نے اس لیے نہیں بلایا چونکہ آج سے مہم کا آغاز کرنا تھا، تو جسٹ آپ کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیغام ورکروں تک پہنچائے۔ ورکر تک ہمارا میسیج بھی نہیں گیا کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ جسٹ ہم کچھ غلط فہمیاں اور کچھ ایشو سے آ رہے تھے، اس کے لیے جسٹ ہم نے ایک پیغام دینا تھا، یہ مطلب کوئی پاور شو یا چیزیں تھی، تو اس لیے ہم نے صرف جسٹ اس چیز کو انفارم کرنے کے لیے ایک مختصر سی ایک وہ رکھا ہوا ہے۔ کون لوگ ہیں جو آپ اس طرح کی جو آپ کے کئی صحافی حضرات نے مجھے کال کی تھی، تو وہ مطلب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہی انفارمیشنز ہوتی ہے۔ کچھ صحافی حضرات نے مجھے کال کی تھی۔
इस हवाले से उनका क्या कहना है? उनका कहना ये था कि आपने जो है आप इलेक्शन नहीं लड़ रही है, आपने टिकट वापस किया है। नईम साहब, आपको जो ना कल जो इत्तेहाद में छोड़ के ऐलान हुआ है और जिस बंदे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एग्री किया है, इत्तेफाक हुआ है, वो आपके घर के फैमिली मेम्बर की तरह है, तो आपके लिए एक ही घर से दो कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा? देखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक की डेफिनेशन शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इत्तेफाक का मतलब होता है एक बंदे के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। इत्तेहाद का मतलब होता है कि इत्तेहाद है एक कबीले का या एक कम्युनिटी का, ठीक है ना जी। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है मेरे से सवाल फैमिली का, देखो सियासत में अभी आप देखा जाए कई पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके घर में से मियाँ बीवी बेटा चाचा चाची सब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो ये मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर एक फैमिली से एक दो बंदे आ जाएं तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। चल रहे हैं, एक तरफ इत्तेहाद छोट बट है, एक तरफ इत्तेहाद बड़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आप लोग अपनी कैंपेन कैसे चलाएंगे? ये चेयरमैन साहब से मेरा सवाल है, आपसे मेरा सवाल है। तो ये माहौल जो एक सियासी जो बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आप लोगों को किस तरह कन्विंस करें? देखें, इस वक्त आपको पता है ना गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली गांछे के अंदर और स्पेशली हल्का-टू के अंदर कोई हलचल मतलब सियासी चीज़, इससे मतलब इलेक्शन कैंपेन बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मुझे तो इस चीज़ पे मज़ा आ रहा है। देखें ना, एक चीज़ होती है ना, हर किसी का अपना अपना एक वो है। तो मैं कहती हूँ ये मतलब इसका मतलब है लोगों के अंदर एक सियासी शऊर उजागर हो चुकी है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह के इत्तेहाद की बातें करना, इत्तेफाक की बातें करना। देखिए, हर कैंडिडेट का अपना एक तरीका, एक मैकेनिज़्म होता है कि अब वो देखें कि वो कैंडिडेट किस तरह से उस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए वो आगे अपना कैंपेन चलाते हैं। आमना साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि सियासी शूर है, जबकि हम देखते हैं कि सारे लोग को इलाकाई इत्तेहाद बन रहे हैं, इलाकाई बेस पे लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं अपने सवाल को थोड़ा सा खोल दूं तो नूर अली जो आपके पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, सेक्रेटरी खजाना खादिम साहब हैं, वो इस इलाकाई इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि लोगों में सियासी तौर पर शूर आ गया है? लोग सियासी जो सियासी उससे वो उकता चुके हैं, वो अपने मसाइल अपने इलाकाई बेस पर, अपने इत्तेहाद की बेस पर अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं इसमें ये है ना, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, आपने कहा कि पार्टी का ओहदेदार, ठीक है ना, पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, ठीक है। अभी हमारे चेयरमैन इब्राहिम साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, ओहदेदार हैं। अभी नूर अली की जब आपने बात की, वाकई हमारे वो PIO के एक प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट गांछे के। देखें, हम किसी को फोर्स करके पार्टी पॉलिसी के अंदर हम घुसा नहीं सकते। ठीक है, वो ओहदा था, उसने अपना ओहदा छोड़ा, उसने पार्टी छोड़ा, उसने प्रेफर के बंदे के अपनी ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने प्रेफर दिया अपने कम्युनिटी को, अपने इत्तेफाक को, अपने इत्तेहाद को तरजीह दी पार्टी के ऊपर। तो इसका अपना एक ज़ाती है, उस पे मतलब हमें ये नहीं कि उसको हम बॉन्ड करें कोई भी मतलब XYZ। तो ये मतलब उसका ज़ाती था, उसका इंटरेस्ट था पार्टी के अंदर। जब उसने कहा कि मुझे पार्टी से ज़्यादा मुझे अपने कम्युनिटी है, उसने फिर वो अपने पार्टी से अलहदी करके उसने अपना पर्सनल डिसीजन उसने लिया। मैं क्या कह सकता हूँ? देखें, आपकी एक बात से मुझे इत्तेफाक है कि सिस्टम में यहाँ पर पूरे मुल्क में एक जमहूरी सिस्टम चलता है। जमहूरी सिस्टम में जमातों के ज़रिए से लोग ऐवानों में जाते हैं और जमातें ही इलाके के मसाइल को हल करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है ना जी। इसी उम्मीद पे सब मुख्तलिफ़ पार्टियों में जाते हैं कि हम इस पार्टी में जाकर अपने इलाके का मसला हल करें। अब जहाँ तक इलाके के मसाइल पर अगर किसी ने फोकस की है तो वो उसके परफॉर्मेंस, उस जमात के परफॉर्मेंस को सामने रख कर वो भटक नहीं जाएगा। अगर किसी ने जमात में इलाकाई इंटरेस्ट को छोड़ के अपना ज़ाती इंटरेस्ट को रखा है तो उसके अख्तियार में है वो, फिर वो जमात छोड़ भी सकता है, किसी के साथ मिल भी सकता है, उस पे जमात का कोई कदगन नहीं।
تو یہی جواب ہے میرا۔ چیئرمین صاحب حلقہ 1 میں 51 ایئر سے آپ لوگوں کا جو ایک ساتھی تھا وہ کافی حد تک انہوں ڈسارڈ ہو گئے اور اس میں بہت سارے معاملات جو آپ کو پتہ ہے جعفر صاحب کے ساتھ جی ٹکٹ کے معاملے میں عاشق کے ساتھ جو چیزیں ہوئی جی اور حلقہ 2 میں جو ہے نا آپ لوگوں نے بڑا ایک اہتمام کے ساتھ حاجی عبدالحمید کو پارٹی میں شامل کیا تھا، تو پارٹی کو الیکشن کے ایام میں ضلع کراچی کی 2 حلقوں میں اس طرح کے معاملات پیدا ہونا، یہ کیا گڈ انڈیکیٹ ہے یا چیزوں کو پہلے سے سیٹلمنٹ نہیں کیا ہوا تھا؟ یہ ایڈیشن سوال ہوگا اسی کے ساتھ ہی، کیا پارٹیوں میں آج کل ایک نظریات ہیں اس کا مطلب وہ چیزیں ختم ہو رہا ہے اور اس کے الیکٹیبلز کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹیبلز کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور جو نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو بھی ساتھ ابھی اس میں ایک ہمارے عتیق صاحب کا جو سوال پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جعفر صاحب بہت ہی سینئر اور ماشاءاللہ سے تقریباً اس نے 8 الیکشن لڑے، اس میں سے 5 وہ جیت چکے اور ماضی میں یہ ہمارے کیبنٹ میں سینئر منسٹر بھی رہے، اس کے پارٹی کے لیے بہت بڑی خدمات ہے۔ یہاں پر ٹکٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کا کرائٹیریا انہوں نے یہ بنایا کہ بھئی جیتنے کے لیے ووٹ چاہیے، شاید یہی انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوگا۔ اور جعفر صاحب کے لیے ہم نے بہت اسٹرگل کیا، چونکہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے پرانے اس کے خدمات ہے، پارٹی کا پرانا رہنما ہے ہمارے گانچھے کے اندر، تو ہم نے اپنے طور پر ایک آرگنائزیشن کا صدر ہونے کی حیثیت سے میں نے ان کا بہت بڑا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ ہمارے صوبائی قیادت نے بھی یہاں تک کہا تھا کہ اگر جعفر صاحب اپنی خوشی سے کسی امیدوار کو لاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ایک سیٹ ہار بھی جائے ہم نے جعفر صاحب کو ٹکٹ دینا، جو ہمارے اپنے صوبے کے سطح تک ہم سب کے جذباتی ہی تھے۔ لیکن ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا چیئرمین صاحب نے، جس میں وفاق سے بھی لوگ تھے اور صوبے کے سے بھی کچھ، یہ صوبے کے کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو اس میں شامل کیا تھا، جو خود بھی کینڈیڈیٹ تھا اور اس کیبنٹ کا، اس کمیٹی کا وہ حصہ بھی تھا۔ تو اب ان کے سامنے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اس سسٹم کے اندر کوئی ریکمنڈیشن لینے کا سلسلہ بھی نہیں رکھا تھا، صوبے سے یعنی ضلع سے، ڈویژن سے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی لے جائے، لیکن چونکہ ان کے ہائی لیول پر جو ان کے اپنی ڈیسیجن ہے وہ ایز اے پارٹی آرگنائزیشن ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، تو انہوں نے پھر ان کو نہیں دیا، اور کیبنٹ نے ان کو یہ موقع بھی دیا، وہ جو کمیٹی نے، کہ آپ چیئرمین صاحب سے بھی ملے، اور چیئرمین صاحب سے بڑی اچھی باتیں ہو گئی۔ اور اگر آج بھی جعفر صاحب ہمارے پارٹی کا اب بھی حصہ ہے، اس نے کل نامنیشن پارٹی کے ٹکٹ نہ ملنے پر اپنا ٹکٹ واپس لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ وہ ناراض ہے۔ اس نے اس کو ٹکٹ نہ ملنے کا افسوس ہمیں بہت ہے، لیکن اس نے ایکسیپٹ کیا۔ ہاں جی، ایک اس میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں بڑا مخلص آدمی ہوں پیپلز پارٹی کا، میں مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا ہوں۔ اگر آج مجھے حلقہ نمبر گانچھے کے 3 میں ٹکٹ دیتا ہے تو میں سیٹ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ مجھے بذات خود سے ٹکٹ نہیں لینا چاہیے۔ حکومتیں بنتی ہیں سیٹوں سے، اگر مجھے سیٹ نہیں مل سکتا ہے، میں بڑا پرانا آدمی ہوں، میں وفادار آدمی ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر جمہوری طور پر ایک حکومت بنانی ہے، اس کے لیے سیٹیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال یہ ہے سر صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹکٹ دیا جائے تو آپ اور انجینئر اسماعیل میں سے کسی کو ٹکٹ دیا جائے تو آپ کی بات درست ہے؟ نہیں، میں نے درست نہیں کہا نا، میں نے درست نہیں کہا نا، مجھے نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ اور ایک اور بندے جو کل پارٹی میں آیا ہے،
अगर सिर्फ सर उस बंदे को आप टिकट दिया सुनिए, जाए ये ठीक है, देखें ना, आप इस सवाल को मज़ीद क्यों खींचते हैं? मैंने कहा ना मेंबर चाहिए ना हुकूमत बनाने के अच्छा लिए। सर, चेयरमैन तो साहब, इसीलिए जहाँ चेयरमैन साहब, इसीलिए सवाल ये है ना कि अभी पिछले जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इलेक्टेबल्स को लाया, पार्टी के ऊपर जब मुसीबत आई तो मतलब बिखर गई सारी चीज़ें। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इस तरह के जो मामला होते हैं, आपके जो नजरियाती लोग हैं उनको नजरअंदाज करने का जो इस तरह के नुकसान होते हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? इसमें देखें ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये पूरे मुल्क में आप देखें, आप सूबे को या हमारे गांचे को फोकस करने के बजाय आप पूरे मुल्क में जाएं। ये रिवायत पूरे मुल्क में चल रहा है, हर जमात में चल रहा है, ये पीपल्स पार्टी में या मुस्लिम लीग में या पीटीआई में नहीं। इसका ना आलम आप इस चीज़ को गलत समझते हैं हैं? पर्सनली, ज़ाती तौर पर आप इस अवाम को गलत समझते हैं? नहीं, मैं पर्सनली, हमें अफसोस है, गलत तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए क्या ये हमारे कमेटी और अथराइज कमेटी और चेयरमैन का फैसला है, लेकिन हम अफसोस है कि इसको इस पे ना इसमें आलम आपका कन्विंसिंग करेंगे सर। लास्ट क्वेश्चन सर, जाफर साहब पीपल्स पार्टी के जो आपके जो उम्मीदवार हैं नामजद, उसके कन्विंसिंग करेंगे? हाँ, क्या नहीं आलम जाफर साहब सर, जाफर साहब कल से आशिक साहब के लिए काम करेंगे सर? नहीं, वो तो अभी उस हलके में उनकी अपनी डीलिंग है। अगर आज मैं सदर हूँ ना, आमिना मुझे बुलाएंगे तो जाएंगे ना, आमिना मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, इसको मेरी ज़रूरत होगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है ना कि अभी जो मुख्तलिफ जो इलाकों में इतिहाद की जो चीज़ें चल रही हैं, तो आपको भी आपके कोई मुज़ाकरात वगैरह या कोई चीज़ें हो रही हैं इतिहाद खपलू के हवाले से, कोई उसके हाथ में बैठ जाए या इतिहाद बराक के हाथ में या इतिहाद शोरबट के हाथ में, इस हवाले से कोई हमने सुना था कि और साथ ही बता दीजिए कि क्या आप कुछ इत्तेहाद के उसमें जो एक प्रोसेस हुआ उसमें आप शामिल थी? ये आखिरी सवाल है, आप कुछ आप इसको हाँ देखें आलम आप अपना अच्छा इस पे देखें, मुझे किसी ने मतलब कोई अप्रोच नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक टिकट है। आपको खुद अगर मैं आज़ाद उम्मीदवार होती तो शायद मुझ तक अप्रोच करती और मुझसे बात होती। देखिए ना, हर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है अपने लिए लड़ता है। मेरे पास एक पार्टी का टिकट है और एक मैं पार्टी की कैंडिडेट हूँ, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है कि किसी ने मुझसे रब्ता किया भी नहीं है, अगर करे तो भी मुमकिन नहीं है कि मैं किसी कोई कैंडिडेट मुझसे रब्ता करें, वो कहें कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो मैं उनको वेलकम करूँगी। अगर कोई ये सोचे कि मैं उनके हक़ में दस्तबरदारी लेके चलूँ तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है। क्या ये बात सच है कि आपका और हाजी हामिद का इंटरनली एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हुआ था, इवन यहाँ वार्तालाप किया था कि आप दोनों जिसको भी टिकट मिले मुझसे कुछ? बिल्कुल, मैं अभी ज़ुहैर की बात का मैं जवाब दूंगी। बिल्कुल, देखें मैं भी इस इलाके की बेटी हूँ। इस इलाके को सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इत्तेहाद शोरबट या इत्तेफाक खपलू का हिस्सा मैं, क्योंकि एक चीज़ मैं वाज़ह कहना चाहती हूँ, छुमदो से ले के पूरा सियाचन तक ये पूरा गांछे है, उसके बाद हल्के चलते हैं। मैं भी इस एक एरिया से मेरा बिलोंग करती हूँ। मैं बिल्कुल मैं उसका हिस्सा गई थी, मुझे बुलाया गया था पूरा, क्योंकि मेरे पास एक टिकट है। देखिए, किसी टेबल पे अगर आपको दावत दी जाती है तो आपको जाके वहाँ की जो उनकी एजेंडा है, उनका मोटो है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको उसके अंदर लगे बेहतरी है, इलाके के लिए बेहतरी है, पार्टी के लिए बेहतरी है, तो उसको सुनना हर किसी की ज़िम्मेदारी है। तो मैं बिल्कुल उधर में गई हूँ, हिस्सा नहीं, मैं गई। जब मुझे वहाँ के एजेंडा, मोटो और जो मकसद, जो एक तरफा चीज़ की जब तरफ मुझे नज़र आया, मैंने वहाँ से बाइकाट कर लिया। तो मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं ना रही हूँ, ना है, ना आगे मैं उस प्रोसेस का हिस्सा। जी बिल्कुल अतीक साहब, आपने ये सवाल किया, बिल्कुल हुआ था। क्योंकि देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं भी थे, हाजी अब्दुल हमीद साहब ने भी ज्वाइन किया था, हमने उनको वेलकम भी किया। उसके बाद पार्टी कायदीन ने हमें बुलाया, पार्टी कायदीन ने कहा देखो हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब पार्टी में रहना है तो पार्टी वालों के साथ हमें एक क्या कहते हैं, वफादारी निभानी चाहिए, और जो मतलब पार्टी डिसीजन होता है उसको मन कबूल करना होता है। बिल्कुल हुआ है, जिसके हमारे पास गवाह भी है। बिल्कुल हमने हल्फन, क्योंकि देखिए ये होता है ना, बंदा, हम कंपटीटर रहे हैं,
हाजी अब्दुल हमीद साहब और मेरा 2020 में एक मुकाबला हुआ है। जब देखे एक मुकाबला होने के बाद बंदा एक टेबल पे रहता है तो है केस अभी भी चल रहा है, केस ख़त्म हो चुका है, तो वो देखे ना फिर होता है तो एक इत्तेमाद का फुकदान होता है। इसलिए 3 गवाह अब्दुल हमीद साहब की तरफ से, 3 गवाह मेरे तरफ से अब भी मौजूद है। मैं इस चीज़ पे कायम और दायम हूँ। उन्होंने हमें हाजी अब्दुल हमीद साहब की तरफ से दावत आई कि हम टेबल पे बैठना चाहते हैं। देखिए जो भी है, मैंने पहले कहा टेबल पे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए। जब हम टेबल पे बैठे, हम एक डिसीजन पर पहुंच चुके। वहाँ हमने हल्फन ये अहद किया, क्योंकि पार्टी वालों की तरफ से भी हमें इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है जी, कि आप लोगों ने अगर जिसको टिकट मिलता है उसके हक़ में आप लोगों ने बैठना है। हमने हल्फन गवाहों की मौजूदगी में हमने हलफ उठाया। हमने कहा अगर मुझे टिकट मिलता है, मैंने कहा अगर हाजी साहब आपको टिकट मिलता है सबसे पहले मैं हाथ पहनाऊँगी। हाजी साहब ने भी हल्फन कहा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो मैं आपको हार पहनाऊँगा। अब जब हलफ की वायलेशन हुई है तो हाजी साहब के वो गवाहान अपने सांस में मौजूद थे जो हाजी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें एक आप उनको मीडिया के सामने एकदम पेश करेंगे उन हाजी साहब की तरफ से जो 3 गवाहान, अगर हाजी साहब इनकारी की तरफ जाते हैं तो अगर नौबत पहुंची, अब तक तो वो नौबत नहीं पहुंची। नहीं देख क्या हो हाजी साहब आपका साथ देंगे, हलफ की वायलेशन हो चुकी है इसलिए नहीं, अब तो देंग वाली बात नहीं है, अब तो वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। हाजी साहब तो उन्होंने आज़ाद कैंडिडेट उन्होंने अपनी नॉमिनेशन भरी है। अगर नौबत पहुंची, पहले तो नौबत नहीं पहुंचेगी क्योंकि राहें जुदा हो चुकी है, राहें जुदा हो चुकी है। अगर नहीं देखिए एक चीज़ देखिए, मुझे पता है आप सहाफ़ी है, आप उसको कुरेदना चाहते हैं। मैंने कहा कि राहें हमारी जुदा हो चुकी है, ठीक है ना। अगर फिर कोई चीज़ होती है तो फिर मेरे जरूर सवाल ये है जी, सियासी बात नहीं करता मैं, एक चीज सवाल ये है कि आपके मैनिफेस्टो में ना ये जो मवासिलात का निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम है, उस पर कोई भी आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस एक्ट 2022 इसकी जो प्रोविजंस अब सामने आ रहे हैं, कहीं दुकान बंद हो रही है, कहीं पर चक्की बंद हो रही है, उस पर उसकी जी फिदा साहब आपको सवाल मुझे समझ है। इसके ऊपर हमने अभी तफसीलन हमने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करनी है आज, क्योंकि आप लोगों ने सवालात, क्योंकि आज वो इलेक्शन के हवाले से अभी इसमें एक बात मैं बताऊंगा, ये तो हम ख़त्म करते। हमारे पार्टी मंशूर के मुताबिक किसी जमहूरी पार्टी में ये नहीं है, पीपल्स पार्टी में ख़वातीन का परसेंटेज है सीट के लिए, और हमें ये फ़ख्र है कि हम ख़वातीन को मुआशरे के अंदर अवामी खदमात के लिए ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, और उसी बुनियाद पर आज हमारे अमीना अंसारी उसमें तो कैंडिडेट ही नहीं ला सके, और ख़वातीन भी। आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में, तो अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें वफाक में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वफाक में जो पार्टी है, गाची हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 3 में आज़ाद रखने के हवाले से बातें चल रही थी। कल उनका प्रेस रिलीज आया कि हल्का नंबर 2 में एक आज़ाद उम्मीदवार को हिमायत कर रहे हैं, हल्का नंबर 3 में भी एक आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन हल्का नंबर 2 में आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि हिमायत का शुक्रिया, हम आज़ाद हैं, किसी पार्टी के हमें मतलब यानी वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये नौबत ये मुस्लिम लीग नून की जो वफाक में हुकूमत होने के बावजूद भी ये चीज़ें चल रही है, उस पर आप क्या करें? वो हर जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, तो ये इनके अपनी, इसका तो उन्हीं से आप पूछा जा सकता है। इसमें हमारा तो क्योंकि ये कंसर्न नहीं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता क्योंकि सकते हम तो इनके इस हर चीज़ पे तनकीद कर देंगे ना, क्योंकि पार्टी हमारा अलग है, लेकिन क्योंकि जेन्युइन जो सवाल बनता है वो मुस्लिम लीगियों से बनता है। आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कहा ना बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बताएंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सलीम